Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Manopal and I'm back with a full one-shot lecture on semiconductors, zero से लेके PYQ. अगर तुमको semiconductors का कुछ भी नहीं आता है, you will be able to completely solve PYQs at the end of this lecture. अगर तुमको semiconductors already पहले से आता है, this will be a great revision for you. I will teach theory as well as do PYQs examples from previous years, previous couple of years. ठीक है, previous few years rather. तो पूरा सेमीकंडक्टर्स हम ख़त्म कर देंगे स्टार्ट टू एंड फॉर योर जेईई मेंस 2024. लेट्स गो. सो फर्स्ट थिंग इज, सी इन अ सिंगल बोर्स एटॉमिक मॉडल, इन अ सिंगल एटम वी नो कि देयर आर एनर्जी लेवल्स दैट द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, है ना. नाउ इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो पूरा एक मेटल है या कोई जो भी मटेरियल है, उसमें द इलेक्ट्रॉन इज एक्सपीरियंसिंग फोर्सेस एंड पोटेंशियल एंड इंटरेक्टिंग विद रेंज ऑफ एटम्स. ठीक है, रेंज ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी. सो व्हाट हैपेंस इज ब्रॉडली वी कैटेगराइज द इलेक्ट्रॉन्स इन टू टर्म्स, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो जो एनर्जी लेवल्स आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो ऐसा कुछ है जैसे कि these are lower energy levels, these are higher energy levels, और एक सडन गैप है बीच में. So basically what happens is, इसको एक we say this is the conduction band. So basically I'm plotting energy on this y axis. ये energy plot कर रहा हूँ मैं, ठीक है. तो ये मेरा conduction band है. So what basically happens is that conduction electrons reside in these energy levels. उनका energy ज़्यादा है. And ये मेरा bound electrons है. So these are all bound electrons. So we call this the valence band. And these are conduction electrons. So जो free electrons है, conduction electrons है, they have greater energy than the bound electrons, which are bound to the atoms. So ये मैंने जो बनाया है energy diagram, that is for an insulator. So insulator में क्या होता है कि you need to give a large amount of energy or a significant amount of energy in order to extract an electron from the valence band to the conduction band. ठीक है. So that is why room temperature पे insulators are not good conductors. They are insulators because ज़्यादा free electrons है नहीं. Thermal energy के कारण वो electrons are not able to jump to the conduction band. ठीक है. Conduction band में जाएंगे so they become free electrons. तो ये जो generally इसको अपन EG से represent करते हैं, which is the band gap between the lowermost conducting level and the highest valence energy level. So EG is called band gap. EG से represent कर रहा हूँ. So for insulators, EG is usually greater than 3 electron volts. Just एक estimate है, ठीक है. Semiconductors on the other hand, the gap is small. So this band gap is less than 3 electron volts, and therefore even at room temperature you have some amount of electrons that are in the conduction band. So थोड़ा थोड़ा conduction हो सकता है. And metals के केस में they are very close to each other or sometimes even overlapping. तो मतलब basically बहुत easily electrons are jumping from the valence band to the conduction band. That's why metals have a lot of free electrons, and that is why metals are very good conductors. ठीक है. So ये मेरा metals है जहाँ पे overlap भी हो जाता है. Alright. So this is how we explain the categorization of materials in insulators, semiconductors, metals in terms of their band gap or energy levels, band levels. ठीक है. देख लो. So semiconductors का most common examples are silicon and germanium. So जैसे कि मैं सिलिकॉन की बात करूं, उसका वैलेंसी 4 है. So silicon forms covalent bonds with other silicon atoms. Now what happens is कि these bonds keep on breaking and forming. तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरह है कि जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, suppose it jumps out. ठीक है, due to some thermal energy it may jump out and basically it becomes a free electron now. तो what will happen is, अब ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया. ये जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गया. करेक्ट.
So what will happen is that if you apply some electric field, so let's say I am applying some electric field to the left, so ये जो free electron था वो कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, राइट में एक्सेलरेट करेगा, करेक्ट. बट व्हाट मे ऑल्सो हैपन इज कि जैसे यहाँ पे एक वैकेंसी है, सो हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन मे जंप आउट ऑफ दिस बॉन्ड, इट मे लीव दिस बॉन्ड एंड गो एंड ऑक्यूपाई दिस वैकेंसी, देयरबाय क्रिएटिंग अ वैकेंसी हियर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग टू द राइट, सो इट्स नॉट जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एक्सेलरेटिंग टू द राइट, बट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर सकते हैं. So there are two types of there are two phenomena that is producing a current. Current हो गया ना, because electric field लग रहा है तो electrons move हो रहे हैं, so that is flow of charge, so current generate हो गया. ठीक है, so एक तो free electrons move करेंगे और ये bound electrons भी jump करके move करेंगे. So therefore we talk in terms of electrons and holes to avoid confusion. तो ये जो free electrons है इस chapter में अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बोलूँ, द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वी टॉक इन टर्म्स ऑफ होल्स. तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन राइट में मूव कर रहा है तो व्हाट विल हैपन इज कि अभी यहाँ लेफ्ट में एक होल क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट. जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो लेफ्ट में होल क्रिएट हो गया. सो टू अवॉइड कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. सो a bound electron moving to the right is the same as hole moving to the left. तो ये जो होल था अभी वो लेफ्ट में आ गया यहाँ पर. ठीक है, तो अपन बोलते हैं इसको, अपन होल बोलते हैं. we say so basically holes is the flow of holes is opposite to flow of bound electrons. ठीक है, so if I want to talk in terms of energy bands, I will say electrons reside here in the conduction band. Now conduction band को CB से represent कर रहा हूँ. अब when I say electrons reside in the conduction band का मतलब किस electrons की बात कर रहा हूँ मैं? Free electrons. And we say holes reside in valence band. उसको VB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वैलेंस बैंड को, तो यहाँ पे मेरा होल्स है. ठीक है, ये बोलने का तरीका है. मुझे पता है इन रियलिटी इट्स बाउंड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिसाइडिंग हियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर, बट इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑन टॉकिंग अबाउट कंडक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की जगह अपन होल्स की बात करते हैं. ठीक है, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एक होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ठीक है, so we say when a bond breaks मतलब क्या, an electron hole pair is formed, ऐसा बोलते हैं. ये बोलने का तरीका है. बॉन्ड ब्रेक मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब क्या, यहाँ पे बात कर दो. ये बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और एक होल भी बन गया. So we say electron hole pair. इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑलराइट, देख लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टिविटी. तो मेरा ओम्स लॉ क्या था, J इक्वल टू सिग्मा ही था, करेक्ट. नाउ वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड मोबिलिटी. मोबिलिटी इस म्यू से अपन डिफाइन करें, इज द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अप्लाइड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे करंट डेंसिटी जनरेट हो गया, सिग्मा इसमें कंडक्टिविटी. अगर मुझे J को एक्सप्रेस करना है म्यू के टर्म्स में, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? आई नो J इज इक्वल टू NeV, करेक्ट. तो मैं V को म्यू टाइम्स E लिख सकता हूँ यहाँ पर. V को मैंने म्यू E लिखा हुआ है, तो ये मेरा कंडक्टिविटी बन गया. तो कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी का ये एक्सप्रेशन है जो अपन याद रखेंगे. व्हाट इज N हियर? ये J इक्वल टू NeV तो आई होप याद है सबको, बिकॉज N वॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, V इज द ड्रिफ्ट स्पीड, करेक्ट. सो N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नो ये सब तो मतलब दिस इज ओनली व्हेन यू हैव ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग. इन आवर केस वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग. सो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ होल्स. सो
मेरे पास जो करंट आएगा सेमीकंडक्टर्स में, दैट विल बी ड्यू टू, इसको मैं लेट मी राइट इट एज, लेट मी राइट कंडक्टिविटी विल बी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो एज वेल एज ड्यू टू होल्स. So holes are like positive charges. Positive E उसका charge है, flowing in the same direction as electric field, and free electrons are flowing in the opposite direction to electric field. But free electrons opposite direction to electric field. Electric field left में है, electrons right में flow कर रहा है, तो उसका current left में आ गया ना, इसलिए दोनों के कारण current add हो गया. ठीक है? So current add हो गया तो conductivity भी दोनों के कारण add हो गया. Alright? So इसमें what is Ne? It is the number of electrons per unit volume, and NH is the number of holes per unit volume. ठीक है. Mu E likewise is mobility of electrons, mu H is mobility of holes. Why will they be different? In fact, let me ask you, कौन सा ज़्यादा होगा? Electrons मतलब free electrons. Electrons का mobility ज़्यादा होगा कि holes का? That should be obvious. Free electrons का mobility ज़्यादा होगा bound electrons. Bound electron मतलब holes. So of course electrons का ज़्यादा होगा. ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, होल्स आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर बाउंड इलेक्ट्रॉन. बाउंड का कम होगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन से मोबिलिटी कम होगा बाउंड का. ठीक है. अच्छा, तो ये मेरा कंडक्टिविटी हो गया. एंड जो भी अपन डील कर रहे हैं, व्हाट वी आर डीलिंग विद इज प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब और कोई इम्प्योरिटी नहीं है. सो प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक भी बोलते हैं. नो इम्प्योरिटी. सो उसमें ऑफ कोर्स यू शुड बी एबल टू रियलाइज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल सेम ही रहेगा ना. एक बॉन्ड है, वन बॉन्ड ब्रेक्स क्रिएट्स वन इलेक्ट्रॉन वन होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी सेम. ओके, सो इन इंट्रिंसिक यू हैव दिस इज इक्वल पर यूनिट वॉल्यूम है ये, उसको मैं Ni से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, दैट इज हाउ वी नेम इट. ऑलराइट, देख लो. Now one big difference between ohmic resistances और semiconductors, दोनों में जो फर्क है, that is how resistance changes with temperature. So ohmic resistance में क्या होता है कि resistance बढ़ता है as temperature is increased, correct? Conductivity कम होता है because collisions बढ़ जाते हैं. But semiconductors में what happens is temperature बढ़ाने पे number of electron hole pairs बढ़ जाते हैं. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं. सो दैट इज द मेन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू कंडक्टिविटी. एंड सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बढ़ जाता है एज टेम्परेचर से इंक्रीज, सो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. ठीक है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज प्रोपोर्शनल टू T raised to 3/2 into E raised to, where delta E is the band gap. जो Eg मैंने पहले Eg लिखा था, वो भी डेल्टा ई लिख रहा हूँ. K इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है. तो यू शुड बी एबल टू सी टेम्परेचर बढ़ने पे n बढ़ रहा है, वो तो दिख रहा है. ओके, सो n बढ़ रहा है तो ये कंडक्टिविटी भी बढ़ जाता है. ठीक है. सो रेजिस्टेंस कम हो जाता है. सेमीकंडक्टर्स में इट इज ऑपोजिट टू व्हाट हैपेंस इन ओमिक मटेरियल्स. अपन याद रखेंगे, राइट? तो वी विल रिमेंबर दिस. सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन जो JEE 2023 में आया था. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. रेजिस्टिविटी रो ऑफ सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर व्हिच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ग्राफ. सो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ चाहिए मुझे. तो इतना तो मुझे पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम होगा, बिकॉज कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी कम होगा, है कि नहीं? तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गए. अब ये दोनों ऑप्शन में मुझे सिलेक्ट करना है. तो मुझे ऑलरेडी पता है कि एक एक्सपोनेंशियल टाइप का टर्म है विच विल डोमिनेट इन द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी में एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एंड देयरफॉर the resistance versus the resistivity versus temperature graph straight line तो नहीं हो सकता, लीनियर तो नहीं था ना कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर का रिलेशन. तो एक कर्व की तरह होगा. अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से इट इज एक्सपोनेंशियल. माय आंसर वुड बी सी. डी गलत नहीं, डी गलत हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है. देख लो. नाउ लेट्स कम टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जहां पर अपन इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं. सो दो टाइप के इम्प्योरिटी मतलब कोई और एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. सो मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूँ. एंड सिलिकॉन में लेट्स इंट्रोड्यूस पेंटावेलेंट एटम, सो लाइक फॉस्फरस.
So we call it N-type doping. So doping is a word that means in semiconductors, doping का मतलब होता है कि you are introducing an impurity. Impurity मतलब कोई और एलिमेंट. सो जैसे कि यहाँ पर सिलिकॉन वैसे तो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे सिलिकॉन के साथ, तो यहाँ पर एक फॉस्फोरस लगा दिया. फॉस्फोरस इज अ पेंटावेलेंट. फॉस्फोरस इज पेंटावेलेंट. सो यहाँ पर फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे. नो, फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 4 के साथ तो वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री बच जाएगा. करेक्ट. सो व्हाट हैपेंस इज दिस इफेक्टिवली व्हाट दिस मींस इज कि फॉस्फोरस हैज डोनेटेड अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू आवर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर. ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री. So phosphorus can only form 4 bonds with other silicon atoms. It is replacing one of the silicon atoms. So ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया? फ्री बच गया. So we say phosphorus is a donor atom. Donor atom मतलब it is donated a free electron. अगर अपन एनर्जी बैंड्स के टर्म से बात करें तो इट इज एज इफ कि मेरा जो कंडक्शन बैंड है यहाँ पर है, वैलेंस बैंड यहाँ पर है, और फॉस्फोरस का जो मेरा डोनर एटम है उसका जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पर है. सो द इलेक्ट्रॉन इज इट्स क्लोज टू द कंडक्शन बैंड. सो द इलेक्ट्रॉन इज इजीली एबल टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड. इफेक्टिवली दैट इज व्हाट दिस मीन्स कि फॉस्फोरस हैज डोनेटेड अ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ऑन द अदर हैंड वी हैव पी टाइप डोपिंग. तो यहाँ पर अपन ट्राईवेलेंट एटम यूज करते हैं. तो सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम लगा देते हैं. तो एल्यूमिनियम विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स, बट एक फिर वैकेंसी रह जाएगा. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या? एल्यूमिनियम ने एक होल क्रिएट कर दिया. सो अभी एक्स्ट्रा होल्स हो गए. ठीक है. सो वी कॉल दिस काइंड ऑफ ट्राईवेलेंट एटम एज एक्सेप्टर एटम बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. एंड वंस अगेन एनर्जी बैंड के टर्म से बात करें तो ये कंडक्शन बैंड. नाउ यू कैन गेस दैट द एक्सेप्टर एटम विल बी क्लोज टू द वैलेंस बैंड. सो दैट वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन गो एंड फिल इन द वैकेंसी एंड दस क्रिएट होल्स इन द वैलेंस बैंड. ठीक है. नाउ व्हेन यू प्रैक्टिकली डू दिस डोपिंग व्हाट हैपेंस इज अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन वो तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा. एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, पी टाइप में होल्स ज्यादा हो जाएंगे. करेक्ट. सो इफेक्टिवली प्रैक्टिकली जब करोगे तो व्हाट यू गेट इज मच ग्रेटर हो जाता है. नंबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम मच ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स. एंड इस केस में इट इज द ऑपोजिट. ठीक है. हाउएवर द प्रोडक्ट in both situations product is always equal to ni squared, where ni was the intrinsic concentration value. Intrinsic semiconductor में दोनों इक्वल थे तो उनका जो वैल्यू था वो ni से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. बट इनका जो प्रोडक्ट है डोपिंग के वक्त वो एक कांस्टेंट होता है. ये अभी मतलब फैक्चुअल है, ये अपन ड्राइव अपने सिलेबस में तो नहीं करेंगे, बट वी विल रिमेंबर दिस ओके फॉर आवर जेईई मेंस. देख लो. Let's do a question based on जो अपन ने अभी इक्वेशन पढ़ा that the product of concentration of electron and holes is a constant ni square के बराबर. So देखो मेरे पास सिलिकॉन एटम्स है 5 to 10.28 एटम्स पर मीटर क्यूब. उसमें इट इज डोप्ड बाय फास्फोरस 1 पार्ट पर मिलियन. 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 1/10⁶. इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ है. फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स. सो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है. सो इसमें वील हैव टू मेक एन अप्रॉक्सीमेशन विच इज वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे फॉस्फोरस से ही है. बिकॉज इफ यू कैलकुलेट फॉस्फोरस का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 1/10⁶. तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब. करेक्ट. सो 1 phosphorus will give 1 electron. तो you can see that the number of electrons donated per unit volume by phosphorus would be 5 × 10⁻22 per meter cube, which is much more than the intrinsic value. तो सिलिकॉन का जो ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है. तो इसी को अपन मान लेंगे कि दिस इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ यू कैन यूज Ne into NH is equal to Ni square in order to get NH. ठीक है, फटाफट करो. It's a simple question. But this is the approximation that we are going to. Approximation भी नहीं है, it's pretty good. ये बहुत ही ज़्यादा है इससे. तो अपन this is the net, इसी को नेट मान लेंगे Ne का वैल्यू. ठीक है.
So just quickly get the concentration of holes. ठीक है, so Ne into NH is Ni squared. तो Ne का वैल्यू 5 into 10 power 22, NH is unknown, and Ni square का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.25 into 10 power 32. ठीक है, so NH का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा? 4.5 into 10 power 9 पर मीटर क्यूब. तो इतने होल्स होंगे पर मीटर क्यूब. एंड यू कैन सी, जो मैंने बोला था कि डोपिंग के वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम मच लार्जर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स. यू कैन सी ये इलेक्ट्रॉन्स 5 into 10 power 22 is much greater than concentration of holes. ठीक है, so even if you dope by just इतना 1 part per million is a very small doping, but उससे भी you get a large increase in the number of electrons. ठीक है, देख लो. Now let's talk about a PN junction. तो सपोज मेरे पास एक P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर है. ठीक है, तो P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को कांटेक्ट में लेकर आ गए. नाउ P टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स है, N टाइप में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो व्हाट विल हैपन इज डिफ्यूजन स्टार्ट्स टू अकर बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू डिफ्यूज फ्रॉम द N टाइप टू P टाइप एंड होल्स स्टार्ट टू डिफ्यूज फ्रॉम P टाइप टू N टाइप. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज, सी इनिशियली P टाइप और N टाइप तो न्यूट्रल है, करेक्ट, बट इलेक्ट्रॉन्स अभी P टाइप में आ गए तो P टाइप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और होल्स आ गए N टाइप में तो वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. राइट, सो ये जो सी यू कैन सी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट विच वी कॉल डिफ्यूजन करंट. एंड डिफ्यूजन करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? इज इट गोइंग फ्रॉम P to N और N to P? होल्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम P to N एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम N to P. तो करंट इज फ्रॉम P to N. इलेक्ट्रॉन्स N to P जा रहे हैं मतलब उसका करस्पॉन्डिंग करंट इज गोइंग फ्रॉम P to N बिकॉज करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज फ्रॉम P to N. ठीक है, याद रखेंगे अपन. एंड वी से दिस इज डन बाय मेजॉरिटी कैरियर्स. मतलब क्या? मेजॉरिटी कैरियर्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिफ्यूजन करंट. इसका मतलब क्या कि P से N जाना मतलब होल्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम P टाइप विच इज द मेजॉरिटी, द होल्स आर द मेजॉरिटी इन P टाइप एंड दे आर carrying the current from P type to N type. Similarly, electrons are the majority in N type, they are carrying the current from N type to P type. So it is the majority charge carriers that are carrying the current. However, अब ये जब सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं? What this implies is there is a depletion region. That is created. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं? अब व्हाट इज दिस डिप्लीशन रीजन? यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम N टाइप टू P टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया. तो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू डू? कि सपोज सी थर्मल एनर्जी के कारण कंटिन्यूसली बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, बॉन्ड्स आर रीफॉर्मिंग. ठीक है, बॉन्ड्स कंटिन्यूसली वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं. तो यहां पर अगर बॉन्ड कोई ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक का मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, वी सॉ दैट. तो यहां पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू द लेफ्ट, सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट टू द राइट एंड होल विल एक्सेलरेट टू द लेफ्ट. होल इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? No, this you can see it is opposite to what was occurring here, correct? तो ये जो करंट है इसके कारण भी एक करंट जनरेट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एंड therefore this current is called drift current. And this is from कौन से सेंस में है? N to P की P to N. Holes are traveling from right to left, मतलब N to P. Electrons are traveling from left to right, so the sense is P to N. So holes are traveling from N to P, so the current is from N to P. ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट ये साइमल्टेनियसली होता है. ये मैंने ऐसे सीक्वेंस में बताया, बट इट जस्ट हैपनिंग साइमल्टेनियसली. एंड दिस इज वी से दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स. इसका बोलने का ये फ्रेज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम P to N इन दिस केस, है ना?
we say electrons are going from p to n, holes are going from n to p. So p to n मतलब p में electrons are the minority carriers, they are carrying the current from p to n, holes are carrying the current from n to p, so we say drift current is due to minority carriers. So in an unbiased pn junction, अब unbiased का मतलब क्या है, मतलब कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, कोई एक्सटर्नल यहाँ पे बैटरी कुछ कनेक्ट नहीं किया, बस इसको ऐसे रखा हुआ है. सो टोटल करंट जीरो होना चाहिए, है ना. देयर इज एक करंट, अगर कोई स्टेडी करंट फ्लो होना है तो एक क्लोज लूप होना चाहिए. तो यहाँ पे कुछ क्लोज लूप तो है नहीं, जब बैटरी लगाएंगे तो क्लोज लूप बनेगा, यहाँ पर तो नहीं है, तो नेट करंट जीरो होना चाहिए. सो बेसिकली दे कैंसिल ईच अदर आउट. लेट मी राइट इट दिस वे कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एंड डिफ्यूजन करंट डेंसिटी आर मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड ऑफ कोर्स ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है. दिस इज फॉर इक्विलिब्रियम सिचुएशन व्हेन यू हैव एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, मतलब कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं है. ऑलराइट. हाँ, एक चीज, इसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी से इट इज डिप्लीटेड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. डिप्लीटेड मतलब वहां पे नहीं है कुछ, यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कैन नॉट रिसाइड. Because as soon as they are formed, they separate because of the electric field. So that is why it is called the depletion region. ठीक है, देख लो. तो depletion region में अगर मैं ऐसा एक प्लॉट करूँ from P to N, let me plot voltage, because there is an electric field. Approximately इस electric field को अगर मैं यूनिफॉर्म मानूँ तो voltage ऐसा जाएगा. करेक्ट. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज करेगा, है ना. दिस इज माय डिप्लीशन रीजन. ठीक है, ये मेरा पी टाइप, दिस रीजन इज पी टाइप, दिस रीजन इज एन टाइप. ऑलराइट. एंड ये जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर. देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट बायसिंग द पीएन जंक्शन. तो सर्किट्स में पीएन जंक्शन को अपन डायोड भी बोलते हैं. ठीक है. When we talk about circuit elements, we talk in terms of what is called as a diode. It's just a PN junction. Okay. तो सपोज मैंने ऐसा बैटरी कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल. So this is what we call as forward bias. ये मेरा P टाइप है, ये N टाइप है, ये मेरा डिप्लीशन रीजन है. सो P टाइप इज कनेक्टेड टू द हायर वोल्टेज ऑफ द बैटरी. सो व्हाट हैपेंस इज, जो मेरा वोल्टेज वर्सेस एक्स ग्राफ था उसमें ये डिप्लीशन रीजन, बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, इट इज इन द ऑपोजिट सेंस टू द वोल्टेज ऑफ द जो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर था उसका ऑपोजिट सेंस में ना. इंटरनल पोटेंशियल बैरियर था डिप्लीशन रीजन में, वो एन टाइप पे ज़्यादा पोटेंशियल था. तो यहाँ पर वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी इन द ऑपोजिट सेंस, तो उसमें डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाता है. ठीक है. सो डिप्लीशन रीजन छोटा होता है, पोटेंशियल बैरियर ऑल्सो बिकम्स लेस. ओके. सो डिप्लीशन रीजन reduces in forward bias and potential barrier also reduces, and we have a current that starts flowing. So the current is flowing from P to N. Okay. तो for an ideal diode, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ, उसमें V से रेजिस्टेंस इज जीरो. तो यहाँ पे अपन डायोड को एक रेजिस्टेंसलेस वायर की तरह मान सकते हैं सर्किट जब अपन सॉल्व करेंगे, क्या एग्जांपल देखेंगे. बट आइडियल डायोड में V से फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस इज जीरो, एंड डायोड का जो सिंबल है वो ऐसा है. दिस इज द P टाइप, दिस इज द N टाइप. ठीक है. सो सर्किट सिंबल में वी आर कनेक्टिंग इट to a battery in this manner and current is flowing. So let's say ये कुछ resistance R है, ये E है. So diode is now in the forward bias because higher terminal is connected to the P type, and therefore ideal diode अगर होगा तो current कितना flow होगा, E by R, because this you can treat it as a resistanceless device. उसके अक्रॉस कुछ resistance नहीं है तो कुछ potential drop है नहीं. ठीक. Alright. तो ये मेरा current हो गया. Now let's look at what happens when you connect a battery in the opposite sense. वो reverse bias होगा, वो देखते हैं. पहले ये देख लो. Let's come to reverse bias diode. तो अब opposite to what we did in forward bias,
नाउ वील कनेक्ट द बैटरी इन दिस मैनर कि हायर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप, ठीक है। अगर मैं सर्किट डायग्राम में देखूं तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है, दिस इज माय पी टाइप, दिस इज माय एन टाइप, तो बैटरी इज कनेक्टेड दिस वे, ठीक है। सो दिस इज रिवर्स बायस, और इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन भी बढ़ जाता है, ठीक है। The depletion region increases, this potential barrier also increases, ठीक है। And current is very small, so ideal डायोड के लिए in reverse bias, RB से represent कर रहा हूँ reverse bias में, we say कि there is no current through it, or you can say कि resistance is like infinite resistance बोल दो, या no current through that रिवर्स बायस डायोड, ठीक है, आइडियल डायोड में। ऑलराइट, तो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आइडियल डायोड्स में, देखते हैं। तो सपोज ऐसा सिंपल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ER 2R 3R, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड द करंट इन द बैटरी, सब डायोड, दोनों डायोड्स को आइडियल बोला हुआ है, तो फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। So current through the battery कितना हो जाएगा? See this higher terminal is connected to the, this is the P type, N type, ये P type या N type. So नीचे वाले डायोड का, ये वाले डायोड का P type is connected to the higher terminal and therefore that is in forward biased. Whereas ऊपर वाला का N type is connected to the higher terminal, so that is in reverse bias. तो reverse bias में तो कुछ current flow नहीं करेगा. So current will only flow in this loop, correct? तो कितना हो जाएगा? इसका resistance तो zero है. So basically my circuit diagram reduces to ये 2R, ये E और ये R, ठीक है। ये डायोड को मैंने रेजिस्टेंसलेस वायर से रिप्लेस कर दिया बिकॉज जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस। तो कितना करंट जाएगा? E/3R, दैट्स योर आंसर, ठीक है। देख लो, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, JEE 2020। तो फाइंड द करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, तो वील अज्यूम द डायोड्स आर आइडियल। सो रिवर्स बायस में कुछ करंट नहीं फ्लो को, फॉरवर्ड बायस में उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इज जीरो, ऐसा अज्यूम करना है अपने को, ठीक है। तो ट्राई, ऑलराइट। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? सो यू कैन सी दैट ये जो हायर वोल्टेज है, करंट इज गोइंग फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो दिस विल बी एट हायर वोल्टेज देन दिस, करेक्ट। सो ये वाला डायोड विल बी इन रिवर्स बायस बिकॉज उसका एन टाइप इज टू द हायर वोल्टेज, और ये वाला डायोड भी रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि अगेन वी एक्सपेक्ट करंट टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसमें भी करंट ऐसे जाना चाहिए, मतलब अगर जाएगा करंट तो ऐसे जाएगा, अगर डायोड नहीं होता तो करंट ऐसे जाता, मतलब दिस विल बी एट हायर वोल्टेज देन दिस। तो अगेन एन साइड इज एट हायर वोल्टेज, मतलब ये भी रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब ये डायोड्स में कुछ करंट जा ही नहीं रहा है, तो करंट कैसे जा रहा है? करंट इज गोइंग थ्रू हियर, देन फ्रॉम हियर टू हियर, लेट मी लेबल दिस पॉइंट एज A, B, C, D. So it's going from A to B, B to C, C to D and then again. डायोड्स के अक्रॉस करंट जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो कितना करंट हो जाएगा? 9 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, 5 ओम, फिर 10 ओम, 15 हो गया, प्लस 5 20, प्लस 10 30, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.1 एम्पियर, नहीं 0.1 नहीं 0.3 एम्पियर, राइट। देख लो। सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन जो JEE 2022 में आया था। सो ऐसे बहुत सारे 3 डायोड्स है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, बहुत सारे ब्रांचेस है, तो ऐसा सर्किट देख के मेनी स्टूडेंट्स जस्ट गॉट स्कैर्ड, क्वेश्चन पहले ही छोड़ दिया विदाउट इवन अटेम्प्टिंग इट। हाउएवर सच क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई विच डायोड इज फॉरवर्ड बायस, विच इज रिवर्स बायस, ठीक है। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। पहले तो देखते हैं D1 का जो N साइड है दैट इज कनेक्टेड टू द लोअर टर्मिनल, करेक्ट, ऑफ द बैटरी, सो दैट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। D2 का जो P साइड है दैट इज कनेक्टेड टू लोअर टर्मिनल, सो देयरफॉर D2 इज रिवर्स बायस, एंड D3 का N साइड इज कनेक्टेड वाया रेजिस्टेंस टू द लोअर टर्मिनल, सो D3 इज आल्सो फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। सो देयरफॉर D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बायस्ड, D2 जो है वो रिवर्स बायस है, तो उसको अपन हटा देते हैं। तो एंड फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस अपन जीरो मानेंगे, कुछ बोला नहीं गया क्वेश्चन में, तो वी आर गोइंग टू अज्यूम आइडियल डायोड्स, ठीक है। सो देयरफॉर लेट मी जस्ट रीड आउट द सर्किट हियर। ये 6 ohms हो जाएगा कनेक्टेड टू द लोअर टर्मिनल ऑफ द बैटरी,
राइट, D2 का वो ब्रांच हटाई तो उसमें कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा, रिवर्स बायस है, एंड देन दिस बैटरी इज गोइंग एंड कनेक्टिंग 2 ohms दिस वे, ठीक है। नाउ अच्छा ये 6 ohm, ये D2 अगर मैंने हटा दिया तो 6 ohm और ये 10 ohm तो सीरीज में हो जाएंगे, करेक्ट, तो उसको मैं 16 कर देता हूँ डायरेक्ट, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर मेरे पास यहाँ पर 10 ohm है, यहाँ पर एक 6 ohm है ना, 10 ohm एंड 6 ohm, ये D3 तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया, सो 10 ohm एंड 6 ohm आर अगेन इन सीरीज, सो देयरफॉर दे बिकम 16 ohms, ठीक है। एंड दैट 16 ohm, वेयर इज इट कनेक्टेड टू, इट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट विच इज द एंड ऑफ 2 ohms, ठीक है। एंड ये जो 16 ohm का जो दूसरा एंड है वो लोअर टर्मिनल पर है, तो इस तरीके से है, ठीक है। कैन आई जस्ट मेक इट दिस वे, 16 ohms एंड इट्स कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ 2 ohms। देखो, आई होप यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि इसका इक्विवेलेंट ये है, जो 16 ohm है जो 16 ohm है उसका एक एंड इज एट द लोअर एंड, ये पूरा 16 ohm है, 10 + 6, एक एंड इज एट द लोअर टर्मिनल ऑफ 10 volt, दूसरा एंड इज एट द राइट साइड ऑफ 2 ohms, राइट साइड ऑफ 2 ohms, लोअर टर्मिनल ऑफ 10 volts, ठीक है। अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो 16 and 16 parallel becomes 8, 8 and 2 will be in series, ये 8 ohms and ये 2 ohms and ये 10 volts, करंट कितना हो जाएगा, 8 + 2 10 सीरीज, 10 volt 10 ohm, करंट इज 1 ampere, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज यू कैन आइडेंटिफाई क्विकली which diodes are in forward biased, which are in reverse biased, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में, देख लो। Now let's look at a real diode. अभी तक अपन आइडियल डायोड से डील कर रहे थे, सो फॉर अ रियल डायोड इफ आई प्लॉट करंट वर्सेस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है इस डायोड के अक्रॉस, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इट इज, आई एम टेकिंग इट एज फॉरवर्ड बायस्ड, सो व्हाट हैपेंस इज द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज अक्रॉस द डायोड लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो करंट इज ऑलमोस्ट जीरो until what we call as the threshold voltage या knee voltage भी बोलते हैं, and then it rises steeply, ठीक है। so अपने लिए सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन का डायोड होगा तो दैट थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज अराउंड 0.6 to 0.7 volts, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा 0.6 है कि 0.7 है, आई थिंक एनसीईआरटी में कहीं 0.7 यूज़ किया, कहीं 0.6, 0.7 बोल देता हूँ चलो, और जर्मेनियम के लिए 0.2 volts, ठीक है। सो अपन इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली वी कैन ड्रॉ द डायग्राम इन दिस वे, it's not exact, it's an approximation that the current, यहाँ पे एक्चुअली कर्व है, वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होता बट कर्व है, बट वो चलो मान सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन के लिए वी विल से दैट ये 0.6 या 0.7 बोला ना मैंने, सो 0.7 वोल्ट के बाद वी से द सिलिकॉन के अक्रॉस वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली बिकम्स अ कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट होगा, कितना भी करंट अपन बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज 0.7 ही मानेंगे अपन, ठीक है। एंड रिवर्स बायस में, तो ये तो मेरा फॉरवर्ड बायस साइड था, सो ये दिस इज यूजुअली इन मिली एम्पियर्स, एंड रिवर्स बायस में ऑपोजिट सेंस में करंट होगा, तो वोल्टेज भी ऑपोजिट सेंस में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा मेरा ग्राफ। तो जैसे कि इसमें वोल्टेज इस तरीके से था कि पी टाइप इज हायर वोल्टेज, एंड रिवर्स बायस में ऐसे होगा, ठीक है, तो नेगेटिव वोल्टेज, एंड द करंट is very small, it is in fact in micro amperes, ठीक है। तो रिवर्स बायस में करंट इज वेरी स्मॉल, जो अपन आइडियल डायोड में बोला था करंट जीरो है, इन रियलिटी थोड़ा तो करंट रहता है, बट दैट इज वेरी स्मॉल एंड माइक्रो एम्पियर्स, ओके। एंड ड्रिफ्ट करंट, सॉरी, डिफ्यूजन करंट व्हिच डोमिनेट्स इन द फॉरवर्ड बायस इज इन मिली एम्पियर्स, ठीक है। सो ये फॉरवर्ड बायस में इट इज द मेजॉरिटी कैरियर्स दैट आर कैरिंग, तो वो डिफ्यूजन करंट था, वी सॉ दैट, एंड रिवर्स बायस में इट विल बी द ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स आर कैरिंग, बिकॉज रिवर्स बायस में द करंट इज गोइंग फ्रॉम एन टू पी विच वॉज ड्रिफ्ट, एंड फॉरवर्ड बायस में करंट इज गोइंग फ्रॉम पी टू एन विच वॉज डिफ्यूजन, ये अपन ने देखा था, ऑलराइट। तो ये जो
डायोड है, रिवर्स बायस में व्हाट हैपेंस इज एक पॉइंट पे द ग्राफ सडनली ड्रॉप्स दिस वे। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, फॉर नाउ द ग्राफ इज दिस वे, दिस इज माय फॉरवर्ड बायस साइड, दिस इज माय रिवर्स बायस साइड। एंड वी ऑल्सो डिफाइन समथिंग कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो ओम्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन नॉट राइट V इक्वल टू IR बिकॉज वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं थ्रू द ओरिजिन, बट वी कैन स्टिल डिफाइन डायनामिक रेजिस्टेंस एज द स्लोप और रादर इनवर्स ऑफ द स्लोप। यहाँ पे करंट वर्सेस वोल्टेज प्लॉट किया तो dV/dt इज द इनवर्स ऑफ द स्लोप, ठीक है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस, इफ दे आस्क यू रेजिस्टेंस देन यूज दिस, बट जनरली ऐसे कुछ पूछते नहीं है रेजिस्टेंस। ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड सी इस रियल डायोड पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है। देख लो, एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये मेरे पास सिलिकॉन डायोड है, लेट्स से 12 वोल्ट है एंड लेट्स से दिस इज 10 ohms। सो फाइंड द करंट, ठीक है। सो करंट मुझे निकालना है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ रखा हुआ है। सो व्हाट दिस ग्राफ टेल्स अस कि 0.7 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। The silicon के across silicon diode के across voltage can only be from 0 to 0.7, alright? So here this 12 volt is greater than 0.7. So in the simple circuit we can easily deduce कि threshold voltage cross हो जाएगा। जब तक 0.7 volt नहीं होता है तब तक current 0 रहेगा, okay? If the silicon के across voltage is less than 0.7 volt then the current will be 0। ये ग्राफ देखो, ये ऐसा ग्राफ, alright? तो इस केस में बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 0.7 देयर विल बी करंट फ्लोइंग, तो वो करंट का वैल्यू निकालना है मुझे। सो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.7, तो मैं लूप लॉ लिख लेता हूँ। तो बैटरी के अक्रॉस 12 से बढ़ेगा वोल्टेज, सिलिकॉन के अक्रॉस ड्रॉप होगा 0.7 से एंड देन IR शुड बी 0 एंड R का वैल्यू 10, तो करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.13 एम्पियर, ठीक है, सिंपल है, देख लो। Let's look at J2022 question. Cutoff voltage of diodes in forward bias is 0.6 volts। ये दिया गया है मेरे पास, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज मतलब वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, नी वोल्टेज। करंट थ्रू 40 ओम रेजिस्टेंसेस सम मिली एम्पर्स, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑलराइट, सो ये 1 वोल्ट है, ये 40 ओम्स है, ये 60 D1 D2। सो सबसे पहले तो लेट्स आइडेंटिफाई कि which डायोड विल बी रिवर्स बायस, which will be forward bias। सिंपल है, D1 का P side is connected to the higher terminal, so that is forward bias। D2 का P side is connected to the lower terminal, D2 is reverse bias। So D2 में तो कुछ current flow नहीं करेगा, so I can say this will be 60 ohms। D1 इस तरीके से I can make my circuit, ठीक है। तो ये 40 and 60 are in series। See तुम ये सारे ऑब्जेक्ट सीरीज में है, तो you can always shift these, वो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वोल्टेजेस तो ऐड होते रहते हैं, करेक्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस, तो यू कैन ऑलवेज शिफ्ट। 40 को लेफ्ट में कर दिया, इसको राइट में कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। 40 एंड 60 को कंबाइन करके मैं डायरेक्टली 100 ohms कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया है, ये 1 वोल्ट है एंड क्या बोला गया है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है 0.6 वोल्ट से। सो कैन आई से, अगर करंट आए है तो कैन आई राइट 1 वोल्ट माइनस 100 इंटू आई, लूप लॉ लिख रहा हूँ, 1 माइनस IR माइनस 0.6 शुड बी 0, सिंपल है। सो आई का वैल्यू आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 100, सो 4 by 1000 एम्पियर विच इज 4 मिली एम्पियर। सो माई आंसर इज 4, ठीक है। देख लो, ज़ीनर डायोड की अभी बात करते हैं। सो रिवर्स बायस में वी सॉ दिस ग्राफ, करेक्ट, करंट वर्सेस वोल्टेज वाला। तो अच्छा, दिस ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड IV कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी डिवाइस के लिए व्हेन यू प्लॉट करंट वर्सेस वोल्टेज इट्स ऑल्सो कॉल्ड IV कैरेक्टरिस्टिक, जो अपन ने डायोड के लिए देखा, ठीक है। दिस वाज फॉरवर्ड बायस्ड, दिस वाज रिवर्स बायस्ड, ठीक है, जस्ट अ नेम। हाँ, तो ज़ीनर डायोड इज बेसिकली डायोड विच इज इन रिवर्स बायस, बट एक पॉइंट पे क्या होता है कि करंट सडन बढ़ जाता है,
अपने देखा रिवर्स बायस करंट वाज वेरी स्मॉल, बट सडनली एट वन पॉइंट as you keep increasing the voltage in the reverse bias direction, the current suddenly increases. And the reason is, see, as you increase the voltage, the electric field also increases. तो what happens is, जो अपना डायोड का मटेरियल है वो एटम्स गेट आयोनाइज्ड. इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, एंड फिर सडन करंट शुरू हो जाता है. एटम गेट्स आयनाइज्ड, एटम्स गेट आयनाइज्ड. तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले एटम से, दे एक्सेलरेट ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, यहाँ पर मेरे पास डिप्लीशन रीजन में, डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, डिप्लीशन रीजन बढ़ गया, सो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए बिकॉज द एटम्स इन द डिप्लीशन रीजन गेट आयनाइज्ड, एंड ये pn है, and electrons start accelerating with very high amounts, and these electrons accelerate and knock out other electrons. तो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर गए, जो आयनाइज हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो एक्सेलरेट भी कर गए, and they keep on knocking out more and more electrons. Those electrons again knock out other electrons, and it's like a chain reaction which is what we call as avalanche breakdown. This phenomena is called as avalanche breakdown. ठीक है? And overall this phenomena is called as Zener breakdown, where the depletion region gets ionized. So sudden large amount of current starts to flow in the reverse bias direction. Electrons अभी right में flow कर रहे हैं, तो current is flowing in the left direction, मतलब N to P, which is the reverse bias direction. ठीक है? And therefore sudden current बढ़ जाता है. And voltage is approximately becomes a constant. So for that voltage you get a very high current. So Zener diode के across voltage becomes a constant, and circuit diagram में Zener diode को अपन represent करते हैं ऐसे, like something like this, like Z की तरह बना देते हैं to represent a Zener diode. This is P, this is N junction. और Zener diode में करंट कब फ्लो, कैसे फ्लो करेगा, ऐसे. This is my direction of current from N to P, reverse bias है ना, provided the voltage across is more than the breakdown voltage. This is the breakdown voltage. ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा वोल्टेज Zener diode के अक्रॉस, तो करंट फ्लो करेगा, और उसके अक्रॉस फिर वो वोल्टेज लिमिट हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, उससे ज्यादा नहीं जा सकता. ठीक है, देख लो. सो Zener diode का एक एप्लीकेशन है, इट्स यूज्ड एज अ वोल्टेज लिमिटर. वोल्टेज लिमिटर मतलब इफ यू पुट अ डिवाइस अक्रॉस द Zener diode, तो उस डिवाइस के अक्रॉस भी एक लिमिटिंग वोल्टेज आ रहा था, बिकॉज वी नो कि Zener diode के अक्रॉस वोल्टेज कैन नॉट बी मोर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना. तो ऑलराइट, तो ये एक क्वेश्चन है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन केम इन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर जेईई मेंस एज वेल. तो मेरे पास एक बैटरी है 120 वोल्ट्स का, 5000 ओम्स का रेजिस्टेंस है, Zener diode है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट दिया हुआ है. So Zener diode is just a diode, normal diode ही है, but उसका मतलब to say that it can be just to tell us from the circuit diagram कि it is operating in the Zener region, or it can be operating in the Zener breakdown region. तो ऐसा डायग्राम बनाया जाता है. ठीक है, और ये 10,000 ohms दिया हुआ. ठीक है, सो क्या पूछा, फाइंड द करंट थ्रू द डायोड. ऑलराइट, सी ऐसे क्वेश्चंस में वी डू नॉट एक्चुअली नो राइट एट द बिगिनिंग कि ये ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा. ब्रेकडाउन होने के लिए द वोल्टेज अक्रॉस इट शुड बी इक्वल टू 50 वोल्ट्स, है ना. अगर इफ द वोल्टेज अक्रॉस इज लेस देन 50 वोल्ट तो ब्रेकडाउन नहीं होगा. सो वी डू नॉट नो राइट एट द बिगिनिंग, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट अज्यूम एंड देन लेटर ऑन चेक. तो अज्यूम कर लो कि इसके अक्रॉस ब्रेकडाउन हो गया, मतलब इसके अक्रॉस 50 वोल्ट्स है. ऑलराइट, ऑलराइट, सो लेट्स से दिस इज 0, तो ये मेरा 50 वोल्ट हो जाएगा. करेक्ट, ब्रेकडाउन मैंने अज्यूम कर लिया. रिमेंबर ब्रेकडाउन में एन साइड इज रिवर्स बायस होना चाहिए. सो दिस इज द एन साइड, दिस इज द पी साइड. सो एन साइड इज एट अ हायर वोल्टेज. ओके, रिमेंबर दैट फॉर रिवर्स बायस. ऑलराइट, तो देखो डायोड के अक्रॉस करंट पूछा, बट अपन डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, उसका कुछ ऐसा रेजिस्टेंस ओमिक मटेरियल तो नहीं है ना डायोड. बट वी कैन यूज these resistances to get the current in them, and then use junction rule to get the current through the diode. That is how you always find the current in the Zener diode. ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा, this will be 50 divided by 10,000, 50 वोल्ट divided by 10,000 ohms, मतलब 5 by 1000 मतलब 5 मिली एम्पियर. करेक्ट,
इसमें 5 मिली एम्पियर जा रहा है, ऑलराइट। और इसमें कितना जाएगा इस रेजिस्टेंस में, ये 0 है, ये 120 हो जाएगा, 120 माइनस 50 डिवाइड बाई 5000, इसमें जो करंट जाएगा दैट विल बी 120 माइनस 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई 5000, दैट इज 70 डिवाइड बाई 5000, सो दिस इज 14 मिली एम्पियर, करेक्ट। तो इसमें 14 मिली एम्पियर जा रहा है, उसमें से 9 कितना 5 मिली एम्पियर 10,000 में गया, तो बचा हुआ इसमें जाएगा ना, जीनर डायोड में कितना जाएगा 9 मिली एम्पियर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। Now, how do you check if our assumption of breakdown voltage was correct? Are we getting the correct direction for the current? Current is traveling from N side to P side, which is what the current should travel in reverse bias के situation में, है ना? That is correct. That's it. वही चेक करना तुमको। अगर तुम्हारा करंट का डायरेक्शन उल्टा आता तो फिर वो गड़बड़ है, बिकॉज करंट का डायरेक्शन उल्टा आता मतलब फिर तो वो फॉरवर्ड बायस हो गया, है कि नहीं, P2 बन जा रहा है मतलब फॉरवर्ड बायस हो गया। बट अगर फॉरवर्ड बायस है तो फिर ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, ब्रेकडाउन तो रिवर्स बायस में होता है, तो फिर अपना assumption ऑफ ब्रेकडाउन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। विल डू अ क्वेश्चन लाइक दैट, ये देखो पहले। ऑलराइट, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। सब वो बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया है, फाइंड द करंट फॉर द बैटरी ऑन द डायोड। ऑलराइट, सो इफ वी अज्यूम दिस ब्रेक्स डाउन, तो इफ दिस ब्रेक्स डाउन, सो लेट्स से ये 0 वोल्ट है, ये 0, ये 12, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, करेक्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है तो ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, ऑलराइट। लेट्स कैलकुलेट द करंट। इसमें 10 वोल्ट है, 10 ओम है, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा, ये 12 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइड बाय 5 मतलब कितना जाएगा 0.4 एम्पियर। दैट मीन्स इफ 0.4 एम्पियर इसमें जा रहा है और 1 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से 0.6 एम्पियर आता होगा। जंक्शन रूल एट दिस पॉइंट, करेक्ट। 0.4 ऊपर से आ रहा है, 1 नीचे से निकल रहा है, मतलब 0.6 यहाँ पे आएगा। बट अगर 0.6 ऐसे जा रहा है तो वो तो P2N जाएगा, 0.6 P2N जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अपन ने ब्रेकडाउन अज्यूम कर लिया, ब्रेकडाउन अज्यूम कर लिया मतलब ऑटोमेटिक वी अज्यूम दैट द जीनर इज इन विच रीजन, रिवर्स बायस रीजन, तो फिर अपना अजम्पशन गलत हो गया। अजम्पशन ऑफ ब्रेकडाउन इज रॉन्ग, दैट मीन्स इट इज नॉट ब्रेकिंग डाउन। सो नो ब्रेकडाउन मतलब द वोल्टेज अक्रॉस इट मस्ट बी लेसर देन 10 वोल्ट, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, अभी यहाँ पे दो सिचुएशन है, ये दिस कैन बी इन रिवर्स बायस बट वोल्टेज इज लेस देन 10 वोल्ट, और इट कैन बी इन फॉरवर्ड बायस्ड, है ना। 3 चीज हो सकता है कोई भी डायोड में, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन। अब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन तो पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट थिंग दैट वील चेक फॉर इज रिवर्स बायस बट नो ब्रेकडाउन, मतलब उसमें करंट कितना मानेंगे। नाउ इट्स लाइक अ आइडियल रिवर्स बायस डायोड, कितना करंट मानेंगे 0, नेग्लिजिबल करंट। So we are going to assume it is in reverse bias but no breakdown. तो इसका मतलब पूरा करंट इस सर्किट में जाएगा, तो ये 12 वोल्ट, ये 5 ओम, ये 10 ओम, करेक्ट। तो कितना करंट जाएगा 12 डिवाइड बाय 15, 0.8 एम्पियर जाएगा, ठीक है। And can you see that our assumption of reverse bias is correct? Why? Because current ऐसे जा रहा है तो इसके अक्रॉस जो भी कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा कंपेयर टू दिस पॉइंट, करेक्ट, बिकॉज करंट इज गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर इन अ रेजिस्टेंस एंड देयरफॉर माय Zener diode, my diode rather, will be in reverse bias, which is fine because N type should be at a higher voltage than P for reverse bias, जो अपन ने अज्यूम करके अभी चेक कर लिया कि करंट मुझे पता है कि ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये वाला N वाला साइड इज एट हायर वोल्टेज देन P, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, करंट इज 0 इन द डायोड एंड 0.8 एम्पियर इन दिस बैटरी, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स। तो सबसे पहले रेक्टिफायर्स देखते हैं, उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर देखते हैं। सो व्हाट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर? इज समथिंग दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या पोलैरिटी चेंज हो रहा है वोल्टेज का। डायरेक्ट करंट मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज इज नॉट चेंजिंग। सो सपोज मेरे पास ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट है एंड मैंने एक डायोड लगा दिया यहाँ पर एंड इसके अक्रॉस में, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आउटपुट ले रहा हूँ। सो दिस इज माई इनपुट एंड दिस इज माई आउटपुट, ठीक है। सो ये मेरा इनपुट का ग्राफ है और जो आउटपुट का ग्राफ होगा, कैन यू सी कि जब ये पोलैरिटी
सपोज पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा है, तो उस हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के लिए दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो करेगा, करेक्ट, एंड करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होगा, या फिर इसके अक्रॉस रियल डायोड में थोड़ा सा वो नी वोल्टेज के बराबर ड्रॉप भी होगा, ठीक है। तो फॉर हाफ द टाइम पीरियड इसके अक्रॉस जो आउटपुट होगा वो कुछ नॉन जीरो होगा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, एंड देन ऑन द अदर सिचुएशन जब ये प्लस ये माइनस हो जाता है फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, देन यू शुड बी एबल टू सी कि दिस विल बिकम रिवर्स बायस, तो देयर विल बी जीरो करंट, रिवर्स बायस हो गया अभी, ये फॉरवर्ड बायस ये रिवर्स बायस, तो इसमें करंट जीरो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो, I इंटू आर, सो देयरफॉर फॉर हाफ द टाइम पीरियड आउटपुट रहेगा फिर जीरो, फिर वापस आउटपुट रहेगा। सो बेसिकली द वोल्टेज इज ओनली इन दिस सेंस पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी नहीं हो रहा है आउटपुट वोल्टेज का, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डीसी वोल्टेज, ओके, सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट एसी टू डीसी। देख लो फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं, तो जो अभी अपन ने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली ओनली हाफ द टाइम पीरियड के लिए वोल्टेज आउटपुट अपने को मिल रहा था, बाकी हाफ द टाइम पीरियड के लिए जीरो आउटपुट था, है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर में दिस इज माई इनपुट एंड we are going to use this sort of a you can call it transformer या mutual inductance, we are going to induce that input voltage here, और फिर यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं और इस इंडक्टर के बीच से एक रेजिस्टर और एक और डायोड यहाँ पर भी लगाते हैं, तो we take the output across this resistance, this is my output, ठीक है। So let's see what happens. सपोज हाफ द टाइम पीरियड के लिए पोलैरिटी यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये सेटअप इज ओनली टू इंड्यूस द इनपुट वोल्टेज हियर, तो ये प्लस माइनस है सपोज हाफ द टाइम पीरियड के लिए, तो दिस विल बिकम फॉरवर्ड बायस, दिस विल बिकम रिवर्स बायस, तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, बस ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दिस रेजिस्टेंस, करेक्ट। देन फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम पीरियड नाउ यू शुड बी एबल टू सी कि ये जो नीचे वाला है वो अब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, अब वो ऊपर वाला रिवर्स बायस हो जाएगा, तो अभी करंट ऐसे फ्लो करेगा, वंस अगेन द करंट इज अगेन गोइंग टू फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द रेजिस्टेंस, सो दोनों सिचुएशन में दिस राइट टर्मिनल इज गोइंग टू बी एट द हायर वोल्टेज, दोनों सिचुएशन में, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, सो दिस राइट टर्मिनल ऑफ दिस आउटपुट इज गोइंग टू बी हायर वोल्टेज थ्रू आउट द टाइम पीरियड, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ डीसी वोल्टेज नाउ, डीसी आउटपुट। सो अगर मेरा इनपुट ऐसे है तो आउटपुट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट फोटोडायोड। तो फोटोडायोड में क्या होता है, वी हैव अ डायोड दैट इज इन रिवर्स बायस एंड इट्स अ डिवाइस टू डिटेक्ट लाइट, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक फोटोन आया, दैट फोटोन विल ब्रेक द बॉन्ड इन द डिप्लीशन रीजन, ब्रेक द बॉन्ड मतलब इट विल एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस इनकमिंग फोटोन। तो डिप्लीशन रीजन में इस बायस रिवर्स बायस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम इन दिस मैनर, करेक्ट, फ्रॉम एन टू पी, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल फ्लो दिस वे, होल्स विल फ्लो टू द लेफ्ट, राइट। सो एक ड्रिफ्ट करंट होगा। सो व्हाट हैपेंस इज, जो रिवर्स बायस में नॉर्मल ड्रिफ्ट करंट है, बिकॉज ऑफ द लाइट इंसिडेंट द ड्रिफ्ट करंट एक्सपीरियंसेस अ सडन इंक्रीज, बिकॉज दोज फोटॉन्स will produce extra electron hole pairs which will contribute to the extra increase in the drift current, ठीक है। तो that is how you detect light, कि तुम करंट ऑब्जर्व कर रहे हो, एक कांस्टेंट करंट जा रहा है इसमें, बट सडनली करंट स्पाइक हुआ, बढ़ गया करंट, मतलब दैट वी डेड्यूस की लाइट हैज बीन डिटेक्टेड, राइट। एंड इसको रिवर्स बायस में क्यों रखते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं रखते, बिकॉज रिवर्स बायस में यू कैन इजीली डिटेक्ट द चेंज इन द करंट, फॉरवर्ड बायस में द करंट इज वेरी हाई, लाइक माइक्रो एम्पियर्स, सॉरी मिली एम्पियर्स में होता है यूजुअली फॉरवर्ड बायस में, तो उसमें छोटा सा जो इंक्रीज इन करंट होगा वो डिटेक्ट अपन नहीं कर पाएंगे, राइट। सो
दैट इज वाई वी वुड लाइक टू कीप दिस फोटोडायोड इन रिवर्स बायस। अगर बैंड्स के टर्म्स में बात करूं मैं, तो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो यहाँ पे जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है इट एब्जॉर्ब्स दैट फोटोन एंड जंप्स टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैंड्स। एंड इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस है ना, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। वो रिवर्स बायस को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया मैंने, ठीक है। सोलर सेल वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, वेरी सिमिलर फिजिक्स है as the photodiode, but in large amount of light is collected by the solar cell. इसका जो IV characteristic होता है, so solar cell collects the large amount of solar energy, जैसे photons होता है, and ये जो current extra generate हुआ, जो यहाँ पर generate होता है solar cell में, so that is used as basically you are saying कि you are converting solar energy into electrical energy in the form of that drift current, ठीक है। इसका जो IV characteristic होता है वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इट्स एज इफ दिस ग्राफ हैज बीन शिफ्टेड टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका एक थोड़ा सा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मेरे पास लाइट आ रहा है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है। इफ यू कनेक्ट दिस एंड मेक इट जीरो पोटेंशियल, ठीक है, तो भी कोई करंट तो फ्लो करेगा ना। सोचो, जीरो पोटेंशियल बायस कर दिया मैंने, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया मैंने, तो भी कुछ करंट तो फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ दैट हाई सोलर सेल का सोलर एनर्जी, रादर हाई अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट इज बीइंग गैदर्ड। यू विल हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इवन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल बायस, ठीक है। सो बेसिकली जीरो पोटेंशियल पर भी यू हैव सम सिग्निफिकेंट करंट, ठीक है। दैट करंट इज इन दिस डायरेक्शन, ऑलराइट। सो द ग्राफ इज बेसिकली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखना अपने को, डायरेक्ट फैक्चुअल आ सकता है। Identify the IV characteristic of solar cell, identify the IV characteristic of photodiode, ऐसे देख लो। Let's look at LED, light emitting diode. तो LED is like the opposite of photodiode. Photodiode में एक फोटोन आ रहा था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर was forming and a current was being detected. Here it's the opposite. Electron hole pair will combine in order to form a bond, and that will cause a release of a photon, which if it is in the visible region, तो अपन बोलेंगे कि light has been emitted. So in this case we use forward bias, और इसका रीजन बताता हूँ मैं। तो फॉरवर्ड बायस में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, P to N, करेक्ट। सो एज करंट फ्लोज यू विल हैव होल्स गोइंग दिस वे, इलेक्ट्रॉन्स गोइंग दिस वे। तो forward bias, we keep it in forward bias to increase the rate of recombination. So forward bias is used to electron or hole pairs will recombine and form a bond. So अगर मैं एनर्जी बैंड के टर्म्स बात करूं, इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में वो वैलेंस बैंड में आ जाएगा, करेक्ट। जो होल मतलब एक वैकेंसी है बॉन्ड में, सो द इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन विल occupy that hole and lose energy obviously because it is coming from conduction band to valence band and thereby releasing a photon, ठीक है। if that photon, if this band gap is usually 1.8 electron volt to 3 electron volt के बीच में, तो we have visible light, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कितना एनर्जी लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर वो वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिपेंड करेगा। वी नो hc बाय लैम्डा के बराबर वो एनर्जी लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना। इसका IV कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैं फॉरवर्ड बायस कर देता हूँ। हाँ, IV कैरेक्टरिस्टिक इसका फॉरवर्ड बायस वाला तो मुझे पता ही ऐसे जाता है, करेक्ट। तो इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट IV कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट LEDs के लिए। सो दिस इज रेड, येलो एंड वायलेट। तो रेड का सबसे कम नी वोल्टेज है, वायलेट का सबसे ज्यादा नी वोल्टेज है, ठीक है। देख लो, लेट्स कम टू लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इज अ सेटअप, जैसे कि मेरे पास एंड गेट है, तो इट इज अ सेटअप वेयर यू कैन इनपुट सम वैल्यूज। तो इनपुट मतलब यहाँ पे वोल्टेज की बात करें, कुछ सिग्नल इनपुट करते हैं, मतलब वोल्टेज सिग्नल।
और कुछ आउटपुट निकलेगा अपने, ठीक है। तो एंड गेट, सो दिस इज अ गेट, गेट इज जस्ट अ वर्ड फॉर सेटअप, या फिर कुछ डायोड्स वगैरह अपन देखेंगे कैसे अपन इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ डायोड्स वगैरह यूज करके, तो ट्रांजिस्टर या डायोड यूज करके अपन सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इफ यू इनपुट अ हाई वोल्टेज, सो अभी यहाँ पे अपन बाइनरी की टर्म्स में बात करते हैं, अ हाई वोल्टेज एंड अ लो वोल्टेज ऐसे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो हाई यूजुअली 5 वोल्ट्स, वी यूज अ 5 वोल्ट बायसिंग वोल्टेज, अपन देखेंगे इसको कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन में। तो हाई वोल्टेज रेफर्स टू अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट एंड लो वोल्टेज रेफर्स टू 0 वोल्ट, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 5 वोल्ट इज हाई, एग्जैक्ट 0 वोल्ट इज लो इनपुट, ऐसा नहीं है, बट क्लोज टू 5 वोल्ट इज हाई इनपुट, क्लोज टू 0 वोल्ट इज लो इनपुट, ठीक है। तो we represent this in binary terms. This is high input is represented as 1 and low input is represented as 0, ठीक है। तो what happens is, इसमें let's say ये A, B, these are my inputs. So the output is called A and B. And notation उसका dot है, ठीक है। A dot B represents A and B. Now what is A and B? What is the output? तो we talk in terms of truth table. तो ट्रूथ टेबल क्या है, इज जस्ट अ नेम फॉर दिस टेबल जहां पे अपन सारे इनपुट के लिए आउटपुट कैलकुलेट या आउटपुट लिख लेते हैं। सो ए बी, ए एंड बी, सो ये मेरे इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। यू कैन सी दीज आर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स। तो जब लो 0 एंड 0 है, लो लो इनपुट है, तो जो आउटपुट निकलेगा वो भी लो ही होगा, ठीक है। 0 एंड 1, 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1, ये मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंड गेट। दिस ट्रूथ टेबल इज डिफाइनिंग दिस लॉजिक गेट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एंड गेट टेलिंग अस, कि ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर हाई इनपुट तभी जाके आउटपुट इज ऑल्सो हाई, ठीक है। बाकी हर केस में आउटपुट विल बी लो। एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट इज लो, ठीक है। दैट इज हाउ दिस एंड गेट इज डिफाइंड, ऑलराइट। और इसका सिंबल ये है। और गेट की बात करते हैं, सो और गेट का सिंबल ऐसा है, और इसका नोटेशन प्लस साइन है। प्लस मतलब ए और बी, दैट इज द जस्ट द नोटेशन फॉर दिस लॉजिक। सो इसमें वंस अगेन अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, द लॉजिक ऑफ और गेट इज कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। जीरो 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 1 1 0 1 1, दीज आर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक इनपुट 1 होगा, हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा, तो 1 1 1, एंड दोनों अगर लो है तो आउटपुट लो होगा, ठीक है। 0 और 0 इज 0, 0 और 1 is 1, 1 और 0 is 1, 1 और 1 is also 1. And finally, let's come to NOT gate. So NOT gate is a gate with only one input. तो ये जो सर्कल है that represents NOT. अब NOT का मतलब है, इसको नोटेशन में A बार लिखते हैं, तो NOT का मतलब कुछ नहीं, it just switches the value of the input. ये मेरा इनपुट, ये आउटपुट, अगर ये 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0, दैट इज ऑल द नॉट गेट डस, ठीक है। तो सिंपल है, 3 मेरे कॉमन गेट्स। अभी इनका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके अपन 2 और गेट देखेंगे, नैंड गेट एंड नॉर गेट। पहले ये देख लो, नैंड गेट की बात करते हैं। सो नैंड गेट इज नथिंग बट A NAND B is nothing but A and B का नॉट। पहले A and B करेंगे, फिर उसका नॉट करेंगे। उसका रिप्रेजेंटेशन है एंड के आगे एक सर्कल। मैंने बोला सर्कल मतलब नॉट रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज माय एंड गेट, बट उसके आगे एक और सर्कल लगा दिया मतलब इट बिकम्स नैंड गेट, ठीक है। राइट, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे दिखेगा? सिंपल है, जो एंड गेट था उसका नॉट करना है अपने को। ए बी, ए एंड बी
और फिर फाइनली ए एंड बी का नॉट। दिस इज माई फाइनल आउटपुट, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ए एंड बी कितना, ए एंड बी तो मुझे पता है 0 0 0 1 1 विल ओनली बी व्हेन बोथ ऑफ देम आर 1। कोई भी एक 0 होगा तो 0 हो जाएगा आउटपुट। तो इसका नॉट करना बस 1 1 1 एंड 0, सिंपल, ठीक है। दिस इज माई आउटपुट। एंड सिमिलरली नॉर गेट, नाउ यू कैन गेस नॉर गेट क्या होगा। ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर गेट वुड बी ए और बी का नॉट, जस्ट लाइक एन एंड गेट था ए एंड बी का नॉट, जैसे ए और बी का नॉट, ठीक है। तो फटाफट ट्रूथ टेबल अभी खुद बना दो, और यू शुड बी एबल टू गेट द ट्रूथ टेबल वेरी इजीली। ए और बी का नॉट, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ए और बी क्या होता है, 0 1 1 1 है कि नहीं, और उसका बस नॉट उल्टा कर दो, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0। दिस इज योर आउटपुट फॉर द नॉर गेट, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है, बस थोड़ा सा अपने को केयरफुली करना पड़ता है। दे विल कंबाइन दीज गेट्स एंड आस्क यू द आउटपुट। एक क्वेश्चन देखते हैं, पर ये देख लो। ओके, सो सपोज मेरे पास ऐसा सिचुएशन है, सो गेट्स कंबाइन कर दिया और मुझे सी आउटपुट निकाला, उसका लेट्स से ट्रूथ टेबल निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं, फाइंड सी इफ ए इज 0 एंड बी इज 1, और फाइंड सी इफ ए इज 1 बी इज 0। अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे। बेस्ट वे इन सच क्वेश्चंस इज फर्स्ट क्विकली ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, बिकॉज वो बहुत फास्ट बन जाता है। लेट्स सी ए, सो यहां पर ए एंड बी, लेट्स से दिस इज पी, लेट्स से इसका इस आउटपुट इज क्यू, ठीक है। एंड पी एंड क्यू का ये आउटपुट सी। सो व्हाट इज पी, ये और गेट है ना, पी इज नथिंग बट ए और बी। व्हाट इज क्यू, क्यू इज नथिंग बट ए एंड बी। सी दोनों गेट्स में इनपुट ए एंड बी है, ऑलराइट। एंड सी इज व्हाट, क्या इनपुट है, पी एंड क्यू आर द इनपुट्स फॉर दिस। तो वो क्या बन जाएगा, पी एंड नाइंड गेट है ना ये, सो पी एंड क्यू का नॉट, ठीक है। सो सी इज इक्वल टू पी एंड क्यू का नॉट, ऑलराइट। तो लेट मी राइट यहाँ पे 2 स्टेप में कर देता हूँ। पी एंड क्यू का नॉट विल बी सी, ठीक है, ऑलराइट। अब फर्स्ट थिंग यू शुड जस्ट फिल इन द कॉलम्स फॉर ए एंड बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। P क्या है, A और B, तो मुझे पता है 0 1 1 1। Q क्या है, A एंड B, तो वो भी मुझे पता है 0 0 0 1, ओके। फिर P एंड Q 0 एंड 0 0 1 एंड 0 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1, और उसका नॉट, एंड दैट इज योर ट्रूथ टेबल, ठीक है। देख लो ऐसे क्वेश्चंस में दे कैन आल्सो आस्क यू टू प्लॉट द आउटपुट सिग्नल इफ दे गिव यू द इनपुट सिग्नल का ग्राफ। सो फॉर एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं, जो इनपुट सिग्नल है वर्सेस टाइम वोल्टेज सिग्नल, सपोज ऐसा है। जो आउटपुट सिग्नल है, मतलब दिस इज हाई वोल्ट, दिस इज हाई, दिस इज लो, हाई लो हाई लो, ऐसे, और आउटपुट जो है वो ऐसा है। सॉरी, बी जो इनपुट है वो ऐसा है, ठीक है। तो ए और बी का जो इनपुट है वो दिया हुआ है, एंड सी का आउटपुट मुझे प्लॉट कर रहा है, राइट। सो वंस अगेन द बेस्ट वे इज टू क्विकली ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, एंड वंस यू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल देन इट इज वेरी इजी। सो जैसे कि मेरे पास, लेट मी डिवाइड दिस into such sections, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में, लेट मी से 0T 2T 3T 4T। तो 0 to T में ए का आउटपुट, ए का इनपुट क्या, 1 हाई इनपुट, बी का इनपुट 1, तो 1 and 1 आउटपुट इज 0, तो मेरा सी यहां पर होगा, करेक्ट। फिर T और 2T, A is 0 B is 1 है कि नहीं, A is 0 B is 1, तो ये सेकेंड कॉलम हो गया, C is 1, ठीक है। फिर 2T and 3T के बीच में A is 1 and B is 0, तो A is 1 B is 0 मतलब C is 1 अगेन। और फिर फाइनली 3T and 4T के बीच में A 0 B 0, A 0 B 0 मतलब C is अगेन 1। ऐसे ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है।
तो यूजुअली एक दो करने पे ऑप्शंस में से समझ जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पूरा करने की जरूरत में यूजुअली नहीं रहता। ठीक है, देख लो। सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन इन JEE 2023। तो ए एंड बी इस तरीके से इनपुट्स दिया हुआ है, ये मेरा लॉजिक गेट सर्किट है, ए एंड बी आर इनपुट्स एंड वाई जो आउटपुट है उसका वेव फॉर्म मुझे निकालना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे NAND गेट्स है, ये भी NAND गेट है, एंड यहाँ पर देखो दोनों इनपुट्स ए है, NAND गेट में दोनों इनपुट ए है। सो लेट्स क्विकली फाइंड द ट्रुथ टेबल, उससे बहुत फास्ट हो जाएगा। सो ए बी, लेट्स कॉल दिस पी, लेट्स कॉल दिस क्यू एंड वाई। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ऑलराइट, तो अभी अपने को करना क्या है, पहले इनपुट ए पे 0 एंड 0 दे रहे, तो 0 एंड 0 उसका नॉट विल बी 1, खुद के साथ ही करना है। ठीक है, एंड जब ए का वैल्यू 1 होगा तो 1 एंड 1 विल बिकम 1, उसका नॉट 0। ऑलराइट, सिमिलरली बी के लिए 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, सेम सेम आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है ना ए एंड बी। ठीक है, अब क्या करना है, P NAND Q करना है। सो Y का वैल्यू इज बेसिकली P एंड Q का नॉट। सो 1 एंड 1 1, उसका नॉट 0, 1 एंड 0 0, उसका नॉट 1, 0 एंड 1 0, उसका नॉट 1 एंड अगेन 1। ठीक है, तो इस तरीके से अब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पहले फर्स्ट T इक्वल टू 0 to 1, बोथ 0 करस्पॉन्ड टू 0, आउटपुट शुड बी 0। तो ये वाला हट गया, ठीक है, ये वाला भी हट गया। अभी बस ऑप्शन 3 एंड 2 में सेलेक्ट करना है। तो 1 एंड 2 में A is 0, B is 1, so A is 0, B is 1 corresponds to 1, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तो 0 बता रहा है। ठीक है, सो इट इज एज सिंपल एज दैट। ऑल यू हैव टू डू इज चेक द ड्रॉ द ट्रूथ टेबल एंड चेक फ्रॉम द ऑप्शंस। देख लो, XOR गेट देख लेते हैं, विच इज नॉट रियली इन अ सिलेबस, बट कुछ खास नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसका सिंबल ऐसा है, सो इसका ट्रूथ टेबल जो है ए बी लेट्स से सी। सो इसका जो ट्रूथ टेबल है 0 0 0 1 1 0 1 1। सो आउटपुट इज 1 व्हेन एग्जैक्टली वन इनपुट इज 1। ठीक है, दोनों इनपुट 1 हो गए तो 0, एग्जैक्टली एक इनपुट 1 है ए और बी में से, तो आउटपुट 1 आता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है। और इसका जो सिंबल है इस तरीके का है, ए XOR B इस ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू कंस्ट्रक्ट दीज लॉजिक गेट्स। तो पहले AND गेट देखते हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन AND गेट। मेरे पास दो डायोड्स हैं यहाँ पर, लेट मी लेबल देम एज D1 एंड D2। ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी 5 वोल्ट हियर, एंड वी टेक द आउटपुट एट दिस पॉइंट, C इज माई आउटपुट। ठीक है, सो A एंड B आर माई इनपुट, C इज माई आउटपुट। ये मेरा लॉजिक गेट सर्किट डायग्राम। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स एज एन AND गेट। तो सबसे पहले तो लेट्स से कि A0 B0, तो यहाँ पे दोनों लो इनपुट है, तो ये N साइड है डायोड्स का, मतलब D1 D2 दोनों क्या बन गए, फॉरवर्ड बायस। करेक्ट, द हायर साइड इज कनेक्टेड टू द हायर टर्मिनल, द P साइड इज कनेक्टेड टू द हायर टर्मिनल, N साइड पे लो कर दिया अपन ने, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए। अब फॉरवर्ड बायस हो गए, इसका मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो रियल डायोड में वो नी वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल P साइड पर होगा, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। 0.7 वोल्ट अगर सिलिकॉन डायोड है तो उसको अपन 0 ही मानेंगे बाइनरी के टर्म्स में। तो इसका मतलब C इज ऑल्सो 0, A0 B0 C0। ओके, फिर इफ यहाँ पे देखो, अगर मैंने B को सपोज 1 कर दिया, लेट्स से यहीं पे लिखता हूँ, इफ A0 B is 1, तो D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। करेक्ट, B के बारे में, B 5 वोल्ट अगर हो गया और यहाँ पर भी 5 वोल्ट है, अगर यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा बिकॉज D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, तो करंट ऐसे फॉरवर्ड बायस के थ्रू जाएगा, मतलब दिस पॉइंट विल बी एट लोअर वोल्टेज देन 5 वोल्ट। करेक्ट, 5 माइनस IR, ये 5 वोल्ट है, दिस विल बी लोअर देन 5, सो देयरफॉर D2 विल बी इन रिवर्स बायस। ओके, अब रिवर्स बायस है तो उसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल है वो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। फॉरवर्ड बायस में मुझे पता है 0.7 वोल्ट, विच इज अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल।
बोल सकता हूं मैं, बट रिवर्स बायस का कुछ नहीं बोल सकता, बट डजंट मैटर बिकॉज एज लॉन्ग एज वन ऑफ द टू इज इन फॉरवर्ड बायस, तो ये 0 है, तो ये तो 0.7 ही होगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 0। सो फिर से मेरा C का वैल्यू कितना 0 ही आने वाला है। इसमें से कोई भी एक फॉरवर्ड बायस हो गया तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलमोस्ट 0। तो अगर D1 फॉरवर्ड बायस है जैसे कि इस केस में A 0 है तो दिस विल बिकम ऑलमोस्ट 0, 0.6 0.7 वोल्ट विच इज ऑलमोस्ट 0, आउटपुट इज 0। एंड सिमिलरली A1 B 0 के केस में भी फिर से यही चीज होगा। एंड फाइनली लेट्स लुक एट इफ A is 1 B is 1, तो दोनों रिवर्स बायस हो जाएगा ना, बिकॉज दोनों यहाँ पे हाई वोल्टेज हो जाएगा N साइड पे। सो बोथ D1 एंड D2 विल बी रिवर्स बायस, एंड रिवर्स बायस में कुछ करंट फ्लो ही नहीं करेगा इसमें। तो अगर इसमें कुछ करंट फ्लो नहीं किया तो यहाँ पे भी कुछ करंट नहीं फ्लो करेगा, करेक्ट, बिकॉज करंट कैन ओनली फ्लो फ्रॉम दिस अर्थ बैटरी रेजिस्टेंस एंड थ्रू द डायोड्स। ठीक है, ये तो ओपन है, यहाँ पे अपन जस्ट मेजर कर रहे हैं वोल्टेज कितना है, तो देयर इज नो करंट इन एनी ब्रांच। एंड देयरफॉर अगर यहाँ पे करंट नहीं है, सी दिस इज 0 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है नहीं, तो ये 5 वोल्ट, मतलब आउटपुट भी 5 वोल्ट। इसका मतलब A1 B1 C1, तो दिस इज नथिंग बट एंड गेट A0 B0 C0, A0 B1 C0, वाइस वर्सा आल्सो 0, एंड ओनली इफ बोथ आर 1 आउटपुट इज 1। ठीक है, तो एग्जाम में आया तो आई वुड सजेस्ट कि इतना मेहनत करने की जरूरत है नहीं यार, ये काइंड ऑफ डायग्राम याद ही रखो। अभी और गेट भी बनाता हूँ तो उसमें कंपैरिजन करके बस, बट आई वुड सजेस्ट कि याद ही रख लो यार। ऐसे दो डायोड है एन साइड पे इनपुट है और एक बैटरी है, तो मेरा क्या है एंड गेट। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट लेट्स लुक एट और गेट। अब और गेट में दो डायोड्स है बट यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एंड गेट एंड और गेट कंस्ट्रक्शन इज एंड गेट में एन साइड इज कनेक्टेड टू द इनपुट, यहाँ पे पी साइड ऑफ द डायोड्स आर कनेक्टेड टू द इनपुट। वैसे एग्जाम में क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर दैट सिस्टम इज एन और गेट और एंड गेट। ठीक है, हाँ यहाँ पे फिर से मैं फटाफट बता देता हूँ व्हाई इज दिस एन और गेट। सपोज A इज 0 एंड B इज 0, तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, तो बोथ द डायोड्स विल बी अनबायस्ड, कोई बैटरी है ही नहीं। यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी P साइड ऑफ सोर्स कनेक्टेड टू द अर्थ 0 है, अनबायस्ड, नो करंट। ये 0 वोल्ट है तो आउटपुट भी 0, करंट तो कुछ है नहीं। ठीक है, सो मतलब A0 B0 C0। अच्छा, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, तो फॉर एग्जाम्पल लेट से A इज 1, अब B 0 हो सकता है, B 1 हो सकता है, डजंट मैटर, कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो A 1 बोल रहे हो, बोल दिया मैंने, तो इसका मतलब मुझे पता है कि D1 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। क्यों? क्योंकि अभी P साइड पे हाई वोल्टेज लगा दिया ना, 5 वोल्ट्स का P साइड पे लगा देंगे, A1 मतलब हाई इनपुट, तो P साइड पे हाई वोल्टेज लगा दिया, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो A अगर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट होगा, 4.3 वोल्ट होगा अगर नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट ले लिया, विच इज बाइनरी में अपन 1 मानेंगे उसको, तो आउटपुट इज 1। तो ये मेरा आउटपुट है, उसको C बोल रहा हूँ, C इज A और B। ठीक है, तो हो गया, और गेट बन गया, बिकॉज एनी ऑफ द इनपुट इज 1, दोनों 1 भी हो सकते हैं या कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट 1 आ जाएगा, पर दोनों 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगा, दैट इज नथिंग बट माई और गेट। ठीक है, बट याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, इनपुट अगर कनेक्टेड टू P साइड है तो कौन सा गेट है, और गेट। इनपुट इफ इट्स कनेक्टेड टू N साइड इट इज एंड गेट, ऐसे याद रखना। ठीक है, देख लो, दैट्स इट फॉर टुडे। तो पूरा सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स हमने कर लिया है। मेक श्योर यू डू PYQs ऑफ द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, दैट शुड बी गुड इनफ, विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन जीनर डायोड एंड लॉजिक गेट्स, क्योंकि उसके वेटेज थोड़ा भी बढ़ गया है। ठीक है, सो मेक श्योर यू डू द PYQs, स्पेशली ये जो मैंने सब टॉपिक्स बोला। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू एट द टॉप। गुड नाइट।